Hello students, today we are going to solve the few questions from the comparing quantities, and these questions are very important. If you follow or if you solve these questions, I think you will get, all of you get full marks in the tomorrow's exam. तो ना पहले देखते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 3/5 एज ए परसेंट में आपको लिखना है. तो व्हाट वी नो दैट एनी नंबर इफ़ यू वांट टू राइट इन द परसेंटेज यू जस्ट मल्टीप्लाई विथ 100%. ओके ना. तो 5 into 20 what we get 60%. okay na. So now Delhi is the correct answer. Now second question is 6/5 ये रेशियो है. You have to convert into the percentage. Again you have to multiply with 100%. okay na. 6/5 when expressed as a percentage is, so now 5 into 20, this is 120%. Calcutta is the correct option. Coming to the next question. Now here the question number 3. If 5% of a number is 9, then the number is what? So suppose the number is x. If you take the 5% of this number, 5% of this number, it will be the 9. So what is its meaning? X into 5/100 is equal to 9. So we can do the cancellation here. It is 20. So what we get? X is equal to 9 into 20. 9 into 20 is what? 180. X is equal to 9 into 20, 180. So Delhi is the correct option. This is question number 3. Now coming to the question number 4. What percent of 90 is 120? 90 का कितना परसेंट 120 होता है? सपोज x परसेंट. सपोज x परसेंट ऑफ 90 is 120. तो what we write 90 into x by 100 which is equal to 120. So now 1010 we can cancel out, and next we can write x is equal to 120 multiply with 10. ये 10 है, ये 120 से मल्टीप्लाई होगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा. तो नाउ इफ यू कैन डू द कैलकुलेशन इट विल बी 3 3 9 and 3 4 12. तो यू हैव 400 डिवाइडिंग बाई 3. तो नाउ इफ यू डू द डिविजन्स व्हाट वी गेट. अच्छा, what percent of 90 is 120 है ना. तो डू द डिविजन्स. You are getting 400. So one time you are taking 3, then 10 again 3 times it is 9, then again 0 3 times you can take, it is 9. So what we get 133 1/3%. That means Calcutta is the correct answer. Okay now, coming to the next question, question number 5. What it said, what percent of 10 kg is 250 ग्राम. तो 10 kg का कितना परसेंट? तो आई सपोज x परसेंट ऑफ 10 kg इज इक्वल टू 250 ग्राम. ओके ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट दिस kg इनटू द ग्राम. इट विल बी 10 into 1000 ग्राम into x परसेंट, x by 100 which is equal to 250 ग्राम which is equal to 250 ग्राम. तो ग्राम कैंसिल आउट. 1 2 these 2 0 cancel out. So what we have 100 times of x which is equal to 250. From here we get x is equal to 250 divided by 100. So it is equal to 5 2s are 10, 5 5s are 5 2s are 10, yes, 5 5s are 25, 5 by 2, that means 2.5%. 2.5%. Let me check the answer. Yes, 2.5%. Delhi is the correct option. Coming to the next question, question number 6. 40% of x is 240, then find the number. So 40% of x, so this is nothing but 40 by 100 multiply with x which is equal to given as 240. So 10 we can cancel out, then 2 2s are 4 and 2 5s are 10. These two you can horizontally cut, it is 120. So you have x is equal to 5 times of 120 which is equal to 600. Okay now, coming to the question number 7. Achha, 600, that means here we have Bombay is the correct option. 600. Question number 7. 80% of x divided by 2 is equal to 504. 180% of x, 180% of x, so 180 by 100 into x, then division by 2, that means 1 by 2 which is equal to 504. So now what we do, we first cancel out this 0, then 2 9s are 18. Next we can write that x is equal to 504 multiply with 10,
and we can divide this whole quantity by 9. These 9 will be in the denominator. So now you can do the that means division. So 5 into 9 45, 45 again 54, 6. So what we have 560. 560 you can see Delhi is the correct option. Okay, now next question, question number 8. X percent of y is y percent of what? So if you write x percent of y, you can write as x by 100 into of means into y. So same thing you can write as y by 100 into x. That means it is nothing but y percent of x. Y percent of x. So x percent of y is same as y percent of x. So that means Agra is the correct option. Coming to the question number 9. So what we have here, what percent of 2 by 7? What percent of 2 by 7 is 1 by 35? Suppose x percent of 2 by 7, which is equal to 1 by 35. So now from here we can write x percent of 2 by so x by 100 of means multiply 2 by 7, which is equal to 1 by 35. Horizontally we can cut, so it will produce 5, then 5 into 20, that is 100, 2 by 10. So now what we have, x is equal to 10. What we have, x is equal to 10. That means Bombay is the correct option. Coming to the question number 10. Raju buys a toy for rupees 75 and sells it for rupees 100. His gain percentage is what? So Raju buys, that means cost price is given as 75 and its selling price SP is given as rupees 100. Therefore we can say that profit is equal to 100 minus 75, 100 minus 75, which is nothing but 25. So therefore his gain percentage, now the profit is 25, how when the cost price is 75, so out of 100 it will be this one. तो 25 से अगर काटेंगे तो 300 by 3 it will be 33.1 by 3%. So what we observe that the Calcutta is the correct option. Now coming to the question number 11. 11 में क्या दिया हो, अ बैट इज बॉट फॉर रुपीज़ 120. तो दैट मीन्स आप कॉस्ट प्राइस पता है वो है 120 रुपीज़ एंड सोल्ड इट फॉर 105. दैट मीन्स एसपी इज गिवन एज 105. दैट मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम द लॉस. तो 120 माइनस 105 आपने लॉस किया 15 रुपये का, आपको लॉस हो गया. तो नाउ फाइंड द लॉस परसेंटेज. तो देयरफॉर एल परसेंटेज, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ लॉस डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट प्राइस 120 इंटू 100%. हमेशा याद रखना प्रॉफिट और लॉस हमेशा डिसाइड होता है, लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर डिसाइड करना होगा आपको, ठीक है ना, कुछ गिवन नहीं रहने से. तो 5 इंटू 2 सॉरी यहाँ पर हम लोग कैंसिल करते हैं, 0 0 कैंसिल, देन बाय 3 से कैंसिल कर देते, 3 इंटू 5, 3 इंटू 4 है ना, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 5 आ जाएगा. तो 25/2 दैट मीन्स 12.5%. तो यहाँ पर लॉस परसेंटेज कितना दिखा रहा है, 12.5% आपका लॉस हो गया, ठीक है ना. तो 12, 13, 14, 15, 16 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में. तो यहाँ तक हम लोग 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं, 12 से स्टार्ट करते हैं. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 12. यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 12 देखें. बनानाज आर बॉट एट 3 फॉर रुपीज़ 2. तो 2 रुपये में आपको 3 बनाना मिला. दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 बनानाज, कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 बनानाज इज इक्वल टू रुपीज़ 2. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ को पता है, तो 1 बनाना का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, रुपीज़ 2/3. ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना. तो बनानाज आर बॉट एट 3 फॉर रुपीज़ 2 एंड सोल्ड एट 2 फॉर रुपीज़ 3. आपने सेलिंग प्राइस ऑफ कितना है, सेलिंग प्राइस ऑफ 2 बनानाज इज़ इक्वल टू रुपीज़ जो है 3 दिया हुआ है. दैट मीन्स एक बनाना का अगर आप एसपी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, रुपीज़ 3/2. तो आपको एक बनाना का सीपी पता है, एक बनाना का एसपी पता है. तो यहाँ से ये 3/2 ये ग्रेटर है, दैट मीन्स एसपी इज़ ग्रेटर देन सीपी. तो आपको प्रॉफिट होने वाला है. तो प्रॉफिट कितना का हुआ है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एक बनाना में आपको हो रहा है 3/2 माइनस 2/3. तो इसको आप सॉल्व करके लिख सकते हो 6. ना यहाँ हो गया 9 माइनस 4, तो 5/6 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हो रहा है. आपको कैलकुलेट क्या करना है क्वेश्चन नंबर 12 में, फाइंड द गेन परसेंटेज. तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बनाना 2/3 इंटू 100%. क्लियर है. तो इट विल बी 5/6 मल्टीप्लाई 3/2 एंड देन यू हैव 100%. क्लियर ना. तो इसको आप कैंसिल करो, 3 2 ज़ा 6, अब 2 2 ज़ा 4, 4 से 100 को कर दो तो ये 25 हो जाएगा आपका.
तो ये 25 इंटू 25 125%, दैट मीन्स आपको प्रॉफिट हो रहा है 125% का, ठीक है ना। तो दिल्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन, इसका पहले हम लोग का था, ओके ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ऑन सेलिंग 100 पेंसिल अ मैन गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल्स। तो 100 पेंसिल अगर आप सेल करते ऑन सेलिंग 100 पेंसिल्स अ मैन गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल्स, देन हिज गेन परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको यहाँ पर देखो, अगर ये क्वेश्चन को पढ़ते हो आप, 100 पेंसिल्स को अगर आप सेल करते हो तो आपको गेन्स कितना का होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल, ओके ना। तो अब एक काम करते हैं हम लोग, ये ले लेते हैं कि ऑन सेलिंग 100 पेंसिल्स मैन गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल। तो ऐसा ले लेते हैं कि आपका CP जो है, CP इज इक्वल टू रुपीज़ X ले लेते हैं, ठीक है ना, फॉर वन पेंसिल, फॉर वन पेंसिल। एक पेंसिल का हम CP ले लेते हैं X, और SP कितना ले लेते हैं, SP ले लेते हैं रुपीज़ Y फॉर वन पेंसिल, क्लियर। तो आपने ऑन सेलिंग ऑफ 100 पेंसिल, अगर आप 100 पेंसिल को सेल करते हो तो आपका टोटल SP आएगा, एक पेंसिल के लिए Y, 100 पेंसिल के लिए 100Y। तो इसमें आपको क्या पता चल रहा है कि अ मैन बाई सेलिंग 100 पेंसिल अ मैन गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल। और उसका गेन कितना हो रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल का। तो यहाँ पर अगर हम लोग गेन लिखेंगे तो गेन हो जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल। 20 पेंसिल का सेलिंग प्राइस कितना है, एक पेंसिल का अगर Y है तो 20 पेंसिल का 20Y। तो आपको गेन पता है, सेलिंग प्राइस पता है, गेन पता है, सेलिंग प्राइस पता है, तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, आप यहाँ से निकाल सकते हो आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि गेन सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में रिलेशंस होता है। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता है कि सेलिंग प्राइस जो है 100 पेंसिल का वो 100Y है, और मेरा गेन कितना है, 20Y मेरा गेन है, क्लियर। तो नाउ अगर मैं डेफिनेशन लगाता हूँ, गेन इज इक्वल टू इंडिकेट करता है SP ऑफ होल थिंग माइनस CP ऑफ होल थिंग्स। तो गेन मेरा कितना दिखा रहा है, 20Y, मेरा SP कितना 100Y है। तो मेरा CP कितना हो गया, 100 पेंसिल खरीदने में मुझे कितना पड़ गए, तो मुझे एक पेंसिल खरीदने में लगा X, तो 100 पेंसिल मुझे खरीदने में लगा 100X रुपीज़, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 20Y माइनस 100Y, तो ये हो जाएगा माइनस 80Y माइनस 100X। तो यहाँ से माइनस माइनस आप कैंसिल कर दे, अब इसको 4 से कैंसिल करते तो 20Y, इसको 4 से करने से 25X। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, अच्छा यहाँ पर मैंने 4 से किया था, 5 से भी काट दो आप 5, और यहाँ पर 5 से काट दो 4Y, तो 4Y इज इक्वल टू 5X। तो दैट मीन्स यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस के टर्म में, या सेलिंग प्राइस को आप कॉस्ट प्राइस के टर्म में लिख सकते हो। तो ये आपको मिल गया आपका एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस। हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, गेन परसेंटेज कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो आपको अभी तक यहाँ से पता चल रहा है कि एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस 5X/4 है, ठीक है ना। तो गेन परसेंटेज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ गेन। आपको गेन कितना का हुआ है, आपको गेन हुआ है 20 इंटू Y का वैल्यू आपको कितना निकला है 5X/4, और एक एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस आपने कितना पकड़ा X, तो इस इंटू 100 कितना आ जाएगा, इंटू 100%। तो इसको कैंसिल करते हैं 5, ठीक है ना, और ये X कैंसिल। तो आपको 5 इंटू 5 25, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करने से 2500 ऐसा कुछ आ रहा है, ओके ना। अच्छा एक मिनट थोड़ा सा चेक करने दे इसको। 4 इंटू 5 20, अच्छा 5X/4 ये मेरा एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस है, ओके ना। तो मुझे निकालना गेन परसेंटेज चाहिए, तो 20Y, गेन मेरा 20Y है, अच्छा 20 इंटू Y का वैल्यू 5X/4, तो ये कैंसिल हो गया, गेन परसेंटेज में चाहिए, ओके। यहाँ पर ये जो गेन हो रहा है, ठीक है ना, ये गेन मेरे कॉस्ट प्राइस मैंने कितना पकड़ा था, एक पेंसिल का X रुपीज़। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है, इसको ज़रा सा आप देख लो। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है।
क्योंकि मैंने गेन क्या निकाला है, एक पेंसिल का यहाँ पर से मैंने गेन निकाल एसपी निकाल लिया। मेरा एक पेंसिल का एसपी कितना 5x/4 और एक पेंसिल का सीपी कितना मेरे पास x है, ठीक है ना। तो यहाँ पर से गेन कितना होगा, गेन हो जाएगा मेरा 5x/4 माइनस x, तो x/4 मेरा 1/2 से गेन होने वाला है। तो गेन परसेंटेज मेरा कितना आएगा, x/4 1/2 से जो गेन आएगा डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस ऑफ वन पेंसिल इनटू 100%, ठीक है ना। तो ये आ रहा है x कट गया 100/4 दैट मीन्स 25%। यहाँ पर एक मिस्टेक मैंने क्या किया था कि मैंने सेलिंग प्राइस जो वो 100 का ले लिया था। सेलिंग प्राइस मैंने 100 पेंसिल्स का ले लिया, लेकिन कॉस्ट प्राइस मैंने 1 पेंसिल का लिया था, इसीलिए एरर आ रहा था। तो अब की मैंने सेलिंग प्राइस 1 पेंसिल का लिया है और कॉस्ट प्राइस भी 1 पेंसिल का लिया, तो गेन कैलकुलेशंस किया वो करेक्ट आ रहा है। तो ये बॉम्बे इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाते हैं। अच्छा, ऊपर में कुछ स्पेस बच गया, यहाँ पर 14 को करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। The selling price of an article is 6/5 of the cost price। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस इज 6/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस को मैं x ले लेता हूँ, इज माई कॉस्ट प्राइस CP, ठीक है ना। x अगर कॉस्ट प्राइस है देन द गेन परसेंटेज, तो मुझे CP पता है, SP भी पता है, तो नाउ मुझे निकालना गेन परसेंटेज। तो गेन इज इक्वल टू SP माइनस CP। मुझे SP कितना पता है 6x/5 और मैंने CP कितना लिया x, तो इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 6x माइनस 5x x/5। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो गेन परसेंटेज, तो ये कितना आ जाएगा, एक का गेन डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100%, ठीक है ना। तो आपका x कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 20%, तो गेन हो गया आपका 20%। क्लियर। तो यहाँ से आगरा इज़ द करेक्ट ऑप्शंस। अब क्वेश्चन नंबर 15 और 16 बचा है। एक काम करते हैं, 15 को यहाँ सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना, स्पेस कम है अपने पास। तो क्वेश्चन नंबर 15 को यहाँ सॉल्व कर देते हैं और 16 को पेज में ही कर देंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, द प्राइस ऑफ ए वॉच % वैट इज़ 825। द बेसिक प्राइस को मैं x ले लेता हूँ और इसके ऊपर आपको 10% वैट भी देना है, मतलब टैक्स देना है, तो 10/100 ये मिला के आपको मिल जाएगा 825 रुपया। क्लियर। ये ज़ीरो काट दो, तो 10x + x 11x, तो 11x/10 इट विल बी 825। तो हॉरिजॉन्टली इसको काट देते, तो ये 7 11 77 मतलब 3 2 5, तो इसको 5 हो जाएगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 75 × 10 है, 75 × 10 दैट मीन्स 750। तो 750 बेसिक प्राइस है। तो यस, कैलकाटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 16 को कहाँ सॉल्व करते हैं, 16 को मैं यहीं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है ना, कॉपी में। ऑन सेलिंग अ चेयर ₹720 अ मैन लॉसेस 25%। टू गेन 25% इट मस्ट बी सोल्ड फॉर, कितना में सेल करना होगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पर आप देखें, ऑन सेलिंग अ चेयर फॉर ₹720 अ मैन लॉसेस 25%। अगर आप किसी चीज़ को 720 रुपया में बेच देते हो तो आपको लॉस कितना का हो जाता है, आपको लॉस होता है 25% का, 25% का लॉस होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसका कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कहाँ करें, जगह तो सॉल्व कर सकते हैं, रुको, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट पेज में जगह है क्या, पहले देखें, नो, यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखा है, यहाँ पर थोड़ा सा जगह है, यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, ऑन सेलिंग अ चेयर फॉर ₹720। तो आपको SP पता है, SP कितना है 720, 720 रुपया SP है, तो आपको लॉस कितना का हो रहा, 25%। 25% लॉस कब होता है, 25% लॉस का कब होगा, जब आप 100 का सामान 75 रुपीज़ में बेच देंगे। 100 का सामान अगर आप 25 रुपये में बेच देते हैं, किसी का कॉस्ट प्राइस जो है 100 रुपीज़ है, आप उसको सेलिंग कर देते हैं 75 में, तो आपको 25 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। तो दैट मीन्स when CP is 100 and SP is 75,
देन यू सफरिंग फ्रॉम द लॉस, तो आपको यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालना है। दैट मीन्स व्हेन एसपी 75 देन कॉस्ट प्राइस इज व्हाट 100। तो आप इसको उल्टा करके लिखो, दैट मीन्स व्हेन एसपी इज 75 देन आपका कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए 100, तो आपको लॉस हो जाएगा 1 रुपया होने से 100/75। आपका यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 720, तो मल्टीप्लाई कर दो 720 से, तो आपको ये क्या मिल जाएगा, ये ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको 100 से काटो, मतलब 25 से काट दो, ये 3 होगा, ये 4 हो जाएगा। इसको आप काट दो 3 × 4, तो 24। यहाँ पर आंसर कितना आ जा रहा है देख लेते हैं, 400। अच्छा 3 दूनी 6, 3 4 12, यस 400 4 4 16 6 हाथ ले लो, 4 दूनी 8 960 रुपया। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है आपके पास, ये ऑब्जेक्ट का दाम है 960 रुपीज़, और आपको अभी कितना चाहिए, इसमें 25% आपको गेन करना है। तो 960 जिसका दाम है ना, उसको अगर आप 125/100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब आपको 125 में बेचना है, तो 960 का सामान कितना में बेचना है, ठीक है। तो आप 25 से ऊपर नीचे काटो 5, इसको 25 से काटो तो 4, इसको आप 4 से फिर काटो, 4 दूने 8, 4 4 16 0, 240 × 5, तो मल्टीप्लाई करके देखो कितना होता है, 5 0 0 5 4 20 0 हाथे 2 5 10 2 12 1200 आता है। तो इसका मतलब बॉम्बे इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बॉम्बे इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट सम्स की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर आप देखो, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5000 एट 8% पर एनम फॉर 2 ईयर कंपाउंडेड एनुअली इज व्हाट। तो हम लोग को इसका फॉर्मूला पता है, कंपाउंड आपको निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। तो सबसे पहले आप अमाउंट निकाल लो, अमाउंट का वैल्यू कितना आएगा आपका 5000 क्या है, ये प्रिंसिपल है ना, 5000 इज द प्रिंसिपल, और रेट कितना दिया हुआ आपको 8% दिया हुआ, तो 1 + r/100 मतलब 8/100 होल पावर 2, ये आप कैलकुलेट कर लो। तो इसका वैल्यू कितना आता है देखो 5000 मल्टीप्लाई विथ, इसको एक काम करते हैं 100 + 8, 108 लिखते हैं 2 बार, हाँ, डिवाइडेड बाय 100, देन 108/100, ठीक है ना। अब इसको यहाँ से देखो 2 0 है, ये 2 0 को इससे आप कैंसिल कर सकते हो, फिर 1 0 को भी आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। अब आपके पास क्या रह गया 5 और ये 10, तो इसको 2 से काटो, इसको आप मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 2 4 दूनी 8, 54 × 108, 54 × 108, 54 × 108, 54 × 108, इसका वैल्यू आता है 5832, इसका वैल्यू आता है 5832, ठीक है ना। मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया, आप लोग इसको जरूर से सॉल्व कर लेना। तो देयरफॉर CI कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस CI अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का वैल्यू लिख दो आप 5832 माइनस 5000, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा आपको 832, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। दैट मीन्स कैलकाटा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6250 एट 8% पर एनम फॉर 1 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली इज व्हाट। अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो 650 रुपया 6250, ये कंपाउंड इंटरेस्ट इसका आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, 6250 ये आपका P है, 1 प्लस यहाँ पर देखो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो मैंने क्या किया था, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको बाई 2 कर दो, तो 8/2/100, देन आपको यहाँ पर 2 × टाइम लिखना है, टाइम को ईयर में लिखना है, ठीक है ना। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट को बाई 2 किया है तो टाइम को भी डबल कर देना है। यहाँ पर बोला है टाइम फॉर 1 ईयर × 1। अब इसको सॉल्व करके जो आएगा वही आंसर, इसको एक बार देख लेते हैं, 6250 इंटू यहाँ पर आप कैंसिलेशंस करो तो एक 4 आ जाएगा आपके पास, तो 4 से काटो, ये 25 हो गया, 25 + 1 26, आप LCM ले लो 25 और ऊपर में न्यूमरेटर में 1 है, तो 26/25 ये 2 बार आएगा, 26/25, ठीक है। अब 25 × 25 625, ये 625 कट के 10 हो गया, तो आपके पास क्या आ रहा है 26 × 26, 26 × 26 करके जो आएगा 676 और उसके बाद 0, तो 6760 आ जाएगा, 6760, ठीक है ना। आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू जो भी आपके पास अमाउंट आया 6760, उससे आप सब्ट्रैक्ट कर दो 6250, जो आपका बेसिक जो है मतलब प्रिंसिपल जो है वो आप सब्ट्रैक्ट कर दो 6250। तो यहाँ से कितना हो रहा है 0, 5 और 1 6, और यहाँ पर आ रहा है 5 और 2 7, 510 ऐसा कुछ दिखा रहा है, 510, यस, बॉम्बे इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 510, ओके ना।
Coming to the question number 19, the sum that amounts to rupees 4913 in 3 years at 6 1/4% per annum compounded annually is. अभी आपको क्या निकालना है, यहाँ से प्रिंसिपल निकालना है, आपको अमाउंट दे दिया, अमाउंट कितना दिया 4913, प्रिंसिपल आपको कैलकुलेट करना है 1 प्लस यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है देख लो आप 6 होल 1/4, दैट मीन्स 24 + 1 25/4 है, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बाई 100 होल पावर कितने साल यहाँ पर दिया है 3 इयर्स टाइम दे दिया, होल पावर 3। तो इसको अब सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा देखो p इंटू 1 + 25/4 इंटू 100 आ जाएगा, होल पावर 3, ठीक है ना। तो इसको 25 से आप काटो, ये 4 होगा, तो 4 4 16, 16 + 1 17, तो p इंटू 17/16 का होल क्यूब, p इंटू 17/16 का होल क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो 4 इंटू 4 16, 16 + 1 17, 17/16 का। क्लियर है, तो चलो नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 4913 इंटू 16 3 बार लेना है, 16 इंटू 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 17 इंटू 17 इंटू 17, ये वैल्यू जो है p का वैल्यू आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, मैं कैलकुलेटर से फटाफट देता हूँ। 4913 आप इसको डिवाइड कर लो 17 से, तो आंसर आएगा 289। जैसे आप इसको डिवाइड करोगे ना तो आंसर आ जाएगा 289, और आपको क्या पता है 17 इंटू 17 289 होता है, तो इसका मतलब 16 को आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स, तो आंसर कितना आना चाहिए 4096। तो दिस विल इम्प्लाई p = 4096, 4096 रुपया, ओके ना, 4096 रुपीज़, दैट मीन्स ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, आगरा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ऑरेंजेस आर बॉट एट 5 फॉर ₹10, 10 रुपये में 5 ऑरेंजेस आपको मिले, 10 रुपये में 5 ऑरेंजेस, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज निकाल लेते, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज है ना, तो ये कितना आ जाएगा 10/5, दैट मीन्स 2 रुपया। तो एक तो ऑरेंज का आपको कॉस्ट प्राइस पता चले कितना बेटा 10 रुपया, एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस कितना है 10 रुपया है, ₹2, 10/5 2, एंड सोल्ड इट 6 फॉर 15, और आपने 6 को बिक्री किया है 15 रुपये में, तो SP ऑफ 1 ऑरेंज का SP कितना हो जाएगा 15/6, ठीक है ना। तो इसको आप 3 से काटो, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, तो 5/2, दैट मीन्स आपने 2.5 रुपये में बेचा है, 2.5 रुपये में बेचा है। तो आपका गेन परसेंट कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले गेन कैलकुलेट करते हैं एक के लिए, तो एक के लिए गेन कितना हो जाएगा SP - CP, दैट मीन्स 0.5 रुपीज़। तो देयरफॉर गेन परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं, गेन परसेंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ गेन डिवाइडेड बाय CP है 2 रुपया, इंटू 100% में कितना होगा, क्लियर ना। तो इसको कैंसिल करते हैं, तो यहाँ से आपको 50 मिलेगा, तो ये 5 × 5 25% आ रहा है आपके पास, तो यहाँ से दिल्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बच्चे जो मेरे क्लास को नहीं समझ पाएंगे ऑनलाइन वीडियो पे, वो वीडियो को पॉज करके देखना, क्योंकि मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, हो सके आपको एक बार में समझ ना आए, तो वीडियो को पॉज करना है, फिर से देखना है, 2-3 बार सुन लेना है। क्वेश्चन नंबर 21 में जाते हैं। बाई सेलिंग अ रेडियो फॉर ₹950, तो आपने एक रेडियो को सेलिंग किया, सेलिंग प्राइस आपको पता है 950 है, तो आ मैन लॉस 5%, तो आपने 5% का लॉस हो गया। 5% का लॉस का मतलब क्या होता है कि अगर आपका अगर आपका यहाँ पर CP जो है 100 है, तो आपका SP कितना हुआ होगा 95 हुआ होगा, क्लियर है ना। तो इसका मतलब SP 95 होने से और CP 100 होने से तब आपको 5% का लॉस होता है, क्लियर। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, when SP is 95, then CP is ₹100, CP जो है वो 100 रुपीज़ का होगा, क्लियर। थोड़ा सा इसको यहाँ करके लिखते हैं लेफ्ट साइड में। अब इसको यहाँ पर देखो, आपको 5% का लॉस हो गया। 5% का लॉस होने का मतलब क्या है कि when SP is 95, then CP is 100, then CP is 100। एकदम इस फॉर्मेट में याद रखो, अगर आपका CP 100 है, SP 95 है, तो आपको ऑब्वियसली लॉस हुआ है 5 रुपये का, 5% लॉस हो गया। 1 रुपया अगर होता है, SP अगर 1 रुपया होता है, तो CP उस टाइम में कितना हो जाएगा 100/95। अगर आपका 950 CP है, तो आपका फिर SP अगर 950 है, तो CP कितना हो जाएगा 100/95
इंटू 950। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से 10 आ गया, दैट मीन्स 1000। तो क्वेश्चन नंबर 21 में ये जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है इसका आपको सीपी पता चल गया, तो इसका सीपी कितना है, 1000 है। सीपी कितना है आपके पास, 1000 रुपीज़। क्लियर है। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट परसेंट शैल ही गेन बाई सेलिंग इट फॉर द 1040। अगर आप इसको 1040 में सेल करते हो तो एक चीज़ का दाम है, किसी ऑब्जेक्ट का दाम है 1000, किसी ऑब्जेक्ट का दाम है 1000 और आप इसको 1040 में बेच रहे हो तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, आपको गेन हो रहा है 40 रुपया का, 40 रुपया का आपको गेन हो रहा है। आपको कैलकुलेट करना क्या है, कैलकुलेट करना है गेन परसेंटेज, ठीक ना। नाउ व्हाट परसेंटेज, तो गेन परसेंटेज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ गेन डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 रुपीज़। तो एक पहले यहाँ से 0 काटते, 1 2 3 काट देते, इंटू आपके पास क्या आ रहा है, ये परसेंटेज साइन होगा इधर 4%, ठीक है ना। तो यहाँ से लोग क्या देख रहे हैं, 4% इज द आप योर गेन। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाते हैं यहाँ पर नंबर increased by 10% and then reduced by 10%, then the number is what, डिक्रीज और इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेनिंग सेम। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको घर में अच्छे से प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 22 को, क्वेश्चन नंबर 22, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 10%। मान लेते आपके पास एक नंबर है 100, ठीक है ना, आपने उसको 10% इंक्रीज़ किया, 10% आप इंक्रीज़ कर दिए तो वो नंबर कितना हो गया, 110। फिर अगर आप उसको 10% घटाएंगे, फिर उसको अगर आप 10% घटा देंगे तो वो कितना हो जाएगा, 10% अगर आप उसको घटा देते तो 100 में वो घट जाएगा, 100 में वो घटेगा 10। क्लियर ना। तो आपके पास नंबर कितना 110 है, तो 110 में कितना रिड्यूस होगा ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो ये रिड्यूस होके आ रहा है 11 घट जाएगा, 11 घट जाएगा। इसका मतलब आपका नंबर कितना हो जाएगा 110 माइनस 11, तो आफ्टर 10% रिडक्शन इट विल बी 99, ठीक है ना। तो गौर करके देखो, आपने स्टार्टिंग कहाँ से किया था 100 से, तो आपने नंबर को इंक्रीज़ किया 10%, नंबर हो गया 110। फिर आपने 10% का रिडक्शन किया, मतलब 11 घटा दिया, तो आपका नंबर कितना हो गया 11 रिड्यूस हो जाने से 99। तो नंबर कितना था 100, फाइनल कितना हो गया 99। तो आपका कितना का नंबर कितना डिक्रीज़ कर गया 1, कितना में डिक्रीज़ किया 100 में 1 डिक्रीज़ किया, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने से इंटू 100%, दैट मीन्स 1% का डिक्रीज़ हुआ। क्या समझा पा रहे हैं आपको, क्या क्लियर है। एक नंबर है 100 पकड़ लो, उसको 10% इंक्रीज़ करने से 110 होता है, फिर 10% घटाने से 11 घट जाता है, मतलब वो नंबर 10% घटाने से 99 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओरिजिनल नंबर 100, फाइनल नंबर 99, कितना का घटा हुआ, रिडक्शन कितना हुआ 1%, 1। तो 100 में 1 का रिडक्शन हुआ, मतलब 1% ही रिडक्शन हुआ। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, अ पीरियड ऑफ 4 आवर 30 मिनट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ अ डे। तो 4 आवर 30 मिनट्स, 4 आवर्स, क्वेश्चन नंबर 23, आप ये देखो 4 आवर्स 30 मिनट्स है आपके पास, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 4.5 घंटा हो गया। 4.5 घंटों को आप कैसे लिख सकते हो, 4 × 2 8, 8 + 1 9, तो 9/2 आवर्स आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो 9/2 आवर्स है आपके पास। क्लियर। अब ये क्या करना है क्वेश्चन नंबर 23 में, अ पीरियड ऑफ 4 आवर 30 मिनट इज व्हाट परसेंट ऑफ ए डे। एक दिन का कितना परसेंटेज होता है, मान लेते हैं x% होता है, तो x% ऑफ 24 आवर्स इज इक्वल टू 9/2 आवर्स। तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं x/100 इंटू 24 इज इक्वल टू 9/2। क्लियर है ना। तो यहाँ से हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, x ओनली। तो यहाँ पर पहले इसको ऐसा लिख देते हैं यहाँ पर, देयरफॉर आवर x इक्वल टू 9/2 मल्टीप्लाई बाई 100 देन डिवाइडेड बाई 24। ये 24/100 है, तो ये सेट जाएगा 100/24 हो जाएगा। यहाँ से काटो 50 हो गया, यहाँ से आप काटो तो 3 से काटोगे तो ये 8 आएगा, 3 से काटने से यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर इसको आप काटो तो 4, इसको आप 2 से काट दो 25, 25 × 3 कितना होता है 75, 75/4 कितना हो रहा है आप देखो, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 3 35, 8 then 32, then 3/4, 18 whole 3/4. Let me check the answer. 18 whole 3/4% is given. Yes, so that means answer A is the correct option. Answer A is the correct option. Clear है, यहाँ तक किसी को डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1/3 ऑफ ए नंबर, क्वेश्चन नंबर 24 पे चले जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पर आप देखो 1/3 ऑफ
1206 का 1/3 लेना है, तो 1206 इसका आप 1/3 ले लो, डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई विथ 1/3, तो 4 इंटू 3 12, देन ये कितना हो गया आपका 402। तो 1206 को अगर आप 3 से डिवाइड करो 402 आएगा। ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं 1/3 ऑफ 1206 व्हाट परसेंट ऑफ 134, 134 का कितना परसेंट 402 होता है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि x%, तो x/100 इंटू 134, ये हो जाएगा मेरे पास 402, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको सिंपली कैलकुलेट करना क्या है, x का वैल्यू 402 इंटू 100 देन डिवाइडेड बाई 134। क्लियर है। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो जाएगा देखते, 2 से कैंसिल करते 50 होगा, ये 2 से काटते 6 दूने 12 देन 7 67, और 402 को 67 से आप डिवाइड कर दो। 402 डिवाइडेड बाय 67 आता है कुछ 6 आ जा रहा है, तो ये 6 हो जाते हैं। तो नाउ 6 इंटू 50 300, तो ऑप्शन में जो है 300 आप देखो है कि नहीं, 300 है, यस। तो ये जो है 300% आपका होगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दिल इज द करेक्ट ऑप्शन। अ नंबर एक्सीज 20% ऑफ इट सेल्फ बाई 40, द नंबर इज व्हाट। एक नंबर है जिसको अगर आप 20% इंक्रीज करोगे तो वो नंबर ओरिजिनली 40 इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं ये नंबर जो है x है। क्लियर। आपने x को 20% इंक्रीज कर दिया तो x इंटू 20/100 हो गया। क्लियर है। तो ये इक्वल टू किसके बराबर होगा, नंबर इंक्रीज कर जाएगा प्लस 40 कर दो। तो अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये 0 काट देते, 2 से काटते ये 5 हो जाएगा। क्लियर। तो ये कितना आता है देखो, 5 इंटू एक्स 5x प्लस एक्स 6x, तो ये आ रहा है 6x/5 विच इज़ इक्वल टू x प्लस 40। तो हम लोग x को इस साइड लेके आ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6x माइनस x/5, तो 6x/5 माइनस x इक्वल टू 40। इसको सब्ट्रैक्शन करने के बाद यहाँ पर एक माइनस साइन होगा, तो ये सब्ट्रैक्शन करने के बाद आएगा x/5 विच इज़ इक्वल टू 40। तो नाउ वी कैन राइट x इक्वल टू 5 इंटू 40 4 20 200, ठीक है ना। तो आपका नंबर कितना हो जाएगा, इज देयर एनी कैलकुलेशन मिस्टेक, लेट मी चेक। 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल हो गया, 2 से काटे 5 हो गया, 5x प्लस एक्स 6x/5, x को यहाँ लेके आ जाओ 5x, तो x/5 हम लोग को क्या निकालना है, नंबर एक्सीड्स 20% ऑफ इट सेल्फ बाई 40। नंबर एक्सीड्स 20% ऑफ इट सेल्फ बाई 40। एक नंबर के साथ अगर 40 ऐड करेंगे तो वो नंबर 20% इंक्रीज कर जाता है। तो व्हाट इज द नंबर, लेट मी चेक द कैलकुलेशन। A number exceeds 20% of itself by 40। एक नंबर exceeds करता है, a number exceeds 20% of itself by 40, अगर उस नंबर में 40 ऐड कर दिए। अच्छा ठीक है, एक सेकेंड, देन द नंबर इज ओके। लगता है कुछ कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम हो रहा है, वेट। A number exceeds 20% of itself by 40। यहाँ पर ऑप्शंस जो है 50 है, 60 है, 80 है और 320 है। A number exceeds 20% of itself। A number, अगर वो नंबर को मैं x लेता हूँ, नंबर exceeds itself by 40, अगर मैं उसके साथ 40 ऐड कर देता हूँ itself by 40, that means a number exceeds 20% of itself। अच्छा, तो ये जो रिज़ल्ट आएगा तो ये नंबर 20% इंक्रीज कर जाएगा, दैट मीन्स 120x/100 हो जाएगा। 0 कैंसिल, 2 से काटते हैं 5, यहाँ पर 2 से काटते हैं 6, और 40 इज इक्वल टू 6x/5 माइनस x, तो यहाँ पर x/5 5 4 20 200 आ रहा है। नो, समथिंग इज़ रॉन्ग, लेट मी थिंक अबाउट इट। कुछ गड़बड़ हो रहा है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। ओके, एक काम करते हैं, थोड़ा सा बैक कैलकुलेशंस करके देखते हैं। क्वेश्चंस का लैंग्वेज थोड़ा सा गड़बड़ है। नंबर एक्सीड्स 20% ऑफ बाई 20। अच्छा, अगर मेरा नंबर 50 है तो 50 का अगर मैं 20% लेता हूँ तो ये होता है कुछ 50 दूने 100, और ये 10 इंक्रीज करता है। ओके,
अगर मैं 60 लेता हूँ, इसका अगर मैं 20% ले लेता हूँ तो ये इंक्रीज़ करेगा 0 0 देन 2 एंड देन 5, 12 इंक्रीज़ करता है। ओके 80 का अगर मैं 20% लेता हूँ तो 20/100 देन दिस 5, 16%, 320 ले लेता हूँ। और इसका अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ 20% तो ये होता है 20/100, तो 0 0 कट गया, 2 से काटे 5, देन यहाँ से कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, let me think that these questions what does it actually mean। हो सकता कहीं कैलकुलेशन से तो नहीं हो रहा है। 20% मुझे चाहिए, दैट मीन्स 20/100, 0 0 काट दो, 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको अगर करेंगे 16, इसको करते हैं 5 12 60, यहाँ से 10, यहाँ से अगर करते हैं 5 से डिवाइड तो 5 5 6 30, कूड़ी 0 5 4 कूड़ी 5 6 30, 5 4 कूड़ी 64। कुछ गड़बड़ हो रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा राउंड करके रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अ नंबर एक्सीड्स 20% ऑफ इट सेल्फ। एक नंबर एक्सीड्स करता है 20% ऑफ इट सेल्फ बाय 40, देन द नंबर इज। A number exceeds 20% of itself, 20% of itself by 40। अच्छा, अगर मैं ऐसा करता हूँ कि 50 + 40 90, तो 90 अगर है तो क्या ये नंबर 20% एक्सीड किया है, ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है। कुछ गड़बड़ है मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से। अगर इसको मैं ऐसा पकड़ लूँ कि नंबर x है और ये 20% इंक्रीज़ हो जाता है, 120/100 होता है, उस नंबर के साथ अगर मैं 40 ऐड करूँ, ठीक है ना, तो ये कुछ ऐसा आएगा, 2 के साथ 6, 2 के साथ 5, 6x/5 इजिकल टू x + 40। तो यहाँ से आ जाएगा 5x, दैट मीन्स x/5 इजिकल टू 40, तो x इजिकल टू 200। मेरे हिसाब से तो 200 आ रहा है। ठीक है, इसको हम लोग होल्ड में रखते हैं, नेक्स्ट हम लोग इसको ज़रूर चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 0.9% कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, 0.9% कैन बी एक्सप्रेस है। 0.9% को हम लोग कैसा लिख सकते हैं, तो लेट मी चेक कोई नेक्स्ट पेज है में जगह है कि नहीं। ठीक है ना, यस जगह है। चलो यहाँ से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 का पार्ट 1 लेते हैं। तो 0.9% आपके पास है, 0.9% है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 9/100 लिख सकते हो, 0.9/100। फिर आप इसको लिख सकते हो 9/1000, ठीक है ना, 9/1000। तो ये हो गया आपका। सेकेंड क्वेश्चन देखो, इफ़ द डिस्काउंट इज 10%, एन आइटम बॉट फॉर ₹90 इज प्राइस्ड एट। इफ़ द डिस्काउंट इज 10%, एन आइटम बॉट फॉर ₹90, an item bought for ₹90 is priced at, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना था ये आपको कैलकुलेट करना है। एक आइटम का जो है 10% आपको डिस्काउंट दिया गया, 10% डिस्काउंट। आफ्टर डिस्काउंट यू हैव बॉट द आइटम ₹90, तो दैट मीन्स कंसीडर द मार्क्ड प्राइस एज x। मार्क्ड प्राइस x है, तो उसमें आपको डिस्काउंट देते हैं 10% का, ठीक है ना। तो मार्क्ड प्राइस x, देन x इंटू 10/100, दिस विल बी ₹90। तो यहाँ से कैलकुलेशन कर लेते हैं, 0 0 कैंसिल, 10x - x 9x/10 विच इज़ इक्वल टू 90। तो यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं, तो 10, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 100। तो वो ऑब्जेक्ट का दाम था 100 रुपया, करेक्ट है ये। नाउ 75% ऑफ 480 इज x इंटू 15, देन x इज व्हाट, 75%। क्वेश्चन नंबर 3, 75%, 75/100 इंटू 480, 480 इज इक्वल टू x इंटू 15, देन x इज व्हाट। यहाँ से इस इक्वेशन से हम लोग को सिर्फ एक कैलकुलेट करना, 25 से काट देते ये 3 होगा, 25 से काटो ये 4 हो जाएगा, 4 से काटो 4 16 48, 160, इसको 3 से काट दो, 3 5 15, इसको 5 से काट दो 160 को, तो 3 5 15, 5 2 10, दैट मीन्स व्हाट वी हैव, x इज इक्वल टू, हम लोग के पास कितने आ रहे हैं, 32, x इज इक्वल टू 32 आ रहा है, ठीक है ना। एक बार और कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लेना,
इट इज़ योर मैटर। अगर कैलकुलेशन में मेरा कहीं मिस्टेक हुआ तो एक बार चेक कर लेना। मेरा आंसर तो यहाँ पर 32 आ रहा है। डिस्काउंट प्राइस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क्ड प्राइस, ये करेक्ट है। CI and SI for 1 year is always equal, ये भी करेक्ट है। when CP cost price is greater than the SP, then we are suffering from the loss. In case of a CI compound interest, the principal is change every year. Yes, the number of quarters are there in 2.5 ईयर। 2.5 ईयर में कितने सारे क्वार्टर्स है, कितने सारे क्वार्टर है? तो एक साल में, अब देखो एक साल में कितने सारे क्वार्टर होते हैं? 4। और एक नेक्स्ट ईयर में कितने सारे क्वार्टर हो जाएंगे? 4। और हाफ ईयर में कितने सारे क्वार्टर हो जाएंगे? तो टोटल क्वार्टर कितने हो गए आपके पास? 10। आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5, आपके पास 5/2 है, ठीक है ना, 5/2 है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 5/2 ईयर्स। क्लियर? तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? 1 ईयर में क्वार्टर होते हैं 4, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 5/2 ईयर्स में इंटू 5/2, तो आपके पास 10 जो है क्वार्टर आ जाएंगे। तो ये आंसर करेक्ट है। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट? P इंटू 1 + R/100 - 1, दिस इज नथिंग बट अ कंपाउंड इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला है, तो ये तो हम लोग को पता है कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अ सिटी कंटेन्स 40% मेल्स एंड 30% फीमेल। एक सिटी में 40% मेल है और 30% फीमेल है, तो 40 + 30 कितना हो गया? 70%। तो 40 मेल है और 30 फीमेल है, बाकी चिल्ड्रेन है। तो 100 माइनस आप कर दो 70, तो आपके पास आ जाएंगे 30% चिल्ड्रेन। बस इस कैलकुलेशन एक बार आप लोग देख लेना। यहाँ पर किसी ने आंसर 24 लिख रखा है, कैलकुलेशन देख लेना। और ये जो क्वेश्चन है इसको मैं सोचता हूँ इसके बारे में 25, और उसके बाद टुमारो वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द क्लास, बिकॉज हमारा आंसर कुछ आ रहा है और यहाँ पर आंसर कुछ आ रहा है। कभी कभी होता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक्स भी हो सकता है, ठीक है ना, हो सके मैं भी रॉन्ग हूँ। तो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल गिव यू द आंसर, ओके ना। होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये जो था हमारा OT एग्ज़ाम्स के लिए जो MCQs है हमारे कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का, वो मैंने कंप्लीट कर दिया। होप टुमारो ऑल ऑफ माय स्टूडेंट विल गेट द फुल मार्क्स। इसी के साथ मैं ये लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। टुमारो वी विल मीट। बाय, हैव अ नाइस डे।